Welcome to my channel. Today we are continuing with your application of derivatives part 2 and we do today maxima and minima based concept and MCQs. So start करते हैं with critical point. A point C in the domain of a function f at which either f dash c is your 0 or f is not differentiable is called a critical point of f. Okay. When f dash c becomes 0, when it is a constant term, means f is not differentiable at that point, then only f dash c becomes 0 and it is known as your critical point. Then come to first derivative test. Let f be a function defined on an open interval I and let f be continuous at a critical point I. Then if f dash x changes sign from positive to negative, if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through point C, then C is the point of local maxima. Okay. Then second, if f dash x changes sign from negative to positive as x increases through point C, then C is the point of your local minima. Clear? Then third point, if f dash x does not change sign as x increases through C, then C is neither a point of local maxima nor a point of local minima, and such a point is called your point of inflection. What called? Point of inflection. If it does not change the sign, it does not means f dash x does not change the sign, then it is a point of not a local maxima nor a point of local minima, it is a point of inflection. Then come to next your second derivative test. Second derivative test. Let f be a function defined on an interval I and c belongs to I such that f be twice differentiable at c. Then x equals to c is a point of local maxima if f dash c equals to 0 and f double dash c is your less than 0, means negative. The value fc, then the value fc is called your local maximum value of f. Then second point, x equals to c is a point of local minima if f dash c equals to 0 and f double dash c greater than 0, means positive, then the value fc is local minimum value of f. Third, if f dash c equals to 0 and f double dash c equals to 0, then your test fails. Clear? So second derivative test is very important and we apply mostly second derivative test in solving our MCQs. ठीक है, इसमें में कुछ नहीं करना है. आपका जो फंक्शन है, जो भी गिवन फंक्शन है, फर्स्ट वी फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट बाय पुटिंग f dash x equals to 0. Then check the sign of f double dash. If it's comes out to be negative, then your local maxima exists and we find the local maximum value by putting C, means critical point, in the given function. Similarly, in the same way, for finding your local minima, we check first its critical point, and if its double derivative comes out to be positive, then your local minima exists and we find out local minimum by putting the critical point in the given function. Clear? And if both derivatives first and second comes out to be 0, then the test fails. Clear? Then come to the MCQs. Question number 1, the critical points for the function. We have to find here critical points for the function. So for critical point, f dash x को क्या करते हैं? 0 के इक्वल पुट करते हैं. So first find out its first derivative. f dash x क्या हो जाएगा यहाँ? 3x square minus 4x plus 1. अब इसको क्या करना है? 0 के इक्वल रखना है और सोल्व कर लीजिए. x के लिए जो x की वैल्यूज आएंगी, डेट आर योर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द गिवन फंक्शन. तो चेक करते हैं. फैक्टराइज इट फर्स्ट. माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और ये आपके फैक्टर्स बनेंगे. x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आप क्या फाइंड आउट की यहाँ पे? तो ये आ गया 3x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x comes out to be 1 and 1/3. So the option A will correct for this question.
इस तरीके से आप क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लोगे बाय सिंपली पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट योर क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर द गिवन फंक्शन. देन कम टू नेक्स्ट MCQs. Then next MCQ, question number 2, the maximum and minimum values of the function are respectively. Okay, and third question में भी हमें चेक करना है local maximum, local minimum. ठीक है, तो for maximum and minimum value और local maximum और minimum value we check it by first derivative test. So for both questions we use first derivative test here. So first solution of question number 2, function क्या given है आपको fx. fx is 2x cube minus 15x square plus 36x plus 11. सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे फॉर सॉल्विंग x, दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, तो चेक करते हैं इट्स क्रिटिकल पॉइंट. f डैश x क्या आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 और 6 कॉमन रखने पर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. इसको फैक्टराइज कर देंगे फर्दर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो आपके फैक्टर्स बने x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए, 2 and 3 फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, अब इसका साइन चेक करेंगे हम फॉर डिफरेंट इंटरवल्स इस फंक्शन का. ठीक है, अब इंटरवल्स हमें डिवाइड करने हैं 2 और 3 के बिटवीन में. ठीक है, 2 and 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे हम फॉर x इक्वल्स टू 0. यहाँ पर चेक कर लेंगे बिलो इट इन बिटवीन दिस 2 और 3 के बीच का नंबर, और यहाँ पर ग्रेटर देन 3. तो साइन चेक करते हैं फॉर दिस 3 इंटरवल्स फॉर दिस फंक्शन. सो आपका क्या आ जाएगा, f डैश x का साइन चेक करेंगे, सॉरी किसका साइन चेक करेंगे, f डैश x का साइन चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में. ठीक है, बाय यूजिंग दिस क्रिटिकल पॉइंट्स एज इंटरवल्स. सो फर्स्ट में देखिए x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या देगा, नेगेटिव नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव साइन. f डैश x का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव. ठीक है, देन अगेन चेक करेंगे इन बिटवीन 2 and 3. 2 and 3 में रखने पर वैल्यू आपका क्या साइन आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इंटरवल नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. देन ग्रेटर देन 3 में आपका पॉजिटिव. अब साइन देखिए, क्या चेक करते थे हम फर्स्ट डेरिवेटिव में, आपका साइन देखते थे पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है साइन एज क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजेस. देन क्या आता था आपका आता था देन लोकल मैक्सिमम. एंड इफ इट्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस मीन्स एज क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजेस देन लोकल मिनिमम एग्जिस्ट. सो आपका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल्स टू 2. यहाँ पर आएगा आपका लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा एट x इक्वल्स टू 3. क्लियर, कैसे यूज किया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का, सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो फंक्शन का जो भी गिवन है, उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, देन इंटरवल्स में डिवाइड करो इसको. ठीक है, और चेक करो साइन फॉर डिफरेंट इंटरवल्स. इफ साइन इंक्रीजेस मीन्स एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेस योर साइन कम्स आउट टू बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट इज local maximum, means that interval local maximum exists, and if sign changes from negative to positive as x increases then local minimum exists. और local maximum और minimum की वैल्यू कैसे आती है, by putting this critical point in the given function. ठीक है, सो f2 पे आपकी वैल्यू क्या देगा फंक्शन, f2 पे वैल्यू आएगी. ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. सो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू मीन्स f2. सो f2 कम्स आउट टू बी, पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू 2 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 एंड प्लस 11. तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, पूरा सॉल्व करो इसको फर्दर. सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा f2 पे 39 मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, f3 पे 38 मीन्स मिनिमम वैल्यू, और ये वैल्यू आपने fx से निकाली है. सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे. ठीक है, यूजिंग योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
इसका सॉल्यूशन देखिए, fx आपको गिवन है 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। सो फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आएगा f डैश x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देन 6 कॉमन है आपका, इसको सोल्व करिए x के लिए फर्दर। तो फैक्टर्स बनाइए फर्स्ट फॉर सोल्विंग x, सो आ जाएगा। और कॉमन फैक्टर्स आए आपके यहाँ प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और आपने x क्या निकाल लिया -3 एंड 4। अरे यहाँ देखिए ये 2 आएगा ओनली, नॉट 12, ठीक है। और हमने उसी के फैक्टर सोल्व कर लिए हैं उसी हिसाब से, -2 आएगा ना ऑन टेकिंग 6 एज कॉमन। सो अब बनाइए इसके कॉमन फैक्टर्स, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आई आपकी -1 एंड 2, ठीक है। अब इससे हम इंटरवल्स पे आपकी वैल्यू चेक करेंगे, f डैश x की साइन चेक करेंगे उसका, f डैश x का। इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस देन लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट, एंड इफ साइन ऑफ f डैश x चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x इंक्रीजेस देन योर लोकल मिनिमम एग्जिस्ट। तो चेक करते हैं, आप इंटरवल्स बनाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव वैल्यूज ही एग्जिस्ट करेंगी और यहाँ आपका 0 ले लेते हैं और ये फर्दर, ठीक है। तो चेक कर लो साइन क्या आएगा यहाँ पर नेगेटिव के लिए, ये भी नेगेटिव आएगा आपका और ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर साइन क्या देगा, -1 और 2 के बीच में 0 रखेंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव। अब इधर क्या साइन आएगा आपका, फॉर ग्रेटर देन 2, फॉर ग्रेटर देन 2 ये पॉजिटिव आएगा। तो साइन यहाँ से यहाँ क्या चेंज हो रहा है साइन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस मीन्स लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू -1। और सेकंड में आपका चेंज हो रहा है यहाँ पे साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा, एट x इक्वल्स टू योर लोकल मिनिमम एग्जिस्ट, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2। अब पूछ क्या रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में द फंक्शन f(x) हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम। यहाँ आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछे, ये पूछ रहा है वेदर द फंक्शन हैज 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम, नो। 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम, नो। 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, यस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे यूजिंग योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दिस टाइप्स ऑफ एमसीक्यू।